Good morning, student. Good Good morning. morning, sir. Morning, sir. Good Okay. morning, sir. Welcome to Anubhav and Viswa. Okay. So, Anubhav, Yes, and sir. Viswa, I am teaching you MA 712. Okay. Functions of several real variable. So, anybody have any idea about the last lecture? लास्ट लेक्चर में क्या किया था, किसी को याद है? We completed linear transformation and Yes. C1 theorem. Good, Jamie, good. So, in last lecture, we have completed our topic linear transformation. Okay, and after completing this linear transformation, we also completed our unit number 1. So, you can see here, or don't worry, Anubhav and Viswa, I will revise you. है ना? तो टेंशन मत लो. Okay, Okay, sir. okay. So, this is the first unit our. Okay, our first unit is basically geometry and the Euclidean space Rn. So Rn is a vector space. We already discussed this, है ना? कर दिया ना जमी? Yes, sir, done. Inner product wala bhi done. Limit continuity bhi done. Inner product now on the Euclidean space R square. We have completed this one also. And 1.3, that is limit continuity and functions from Rn to Rn. We also completed this with the linear transformation. So is there any doubt, any question in the unit number 1? Anybody? Sir, I have in exercise 1.3. Okay, Javi. We will discuss it in second lecture. चलेगा? Okay, sir, no problem. 716 में उसको consider करते हैं. Okay. Okay, no problem. Okay. And anybody? Okay. So then we are going to discuss or we are going to start our unit number 2, that is the differentiation. Okay. So I discuss about the differentiation. First, so this is our last lecture. About the last lecture we have completed up to linear transformation. Okay. Then today, yes. So first, differentiability of f from R to R. Okay, from R to R. So how we can find the differentiability for f from R to R? R to R के लिए तो आप जानते हो, है ना? Yes or no? हमने डिस्कस भी किया था फर्स्ट जब हम एलिमेंट्री डिस्कस कर रहे थे तब, है ना? क्या था डेफिनेशन? एनीबडी? When we can say that function is differentiable at a point A. स्टूडेंट याद नहीं है क्या? हमने डिस्कस किया था ना कि मुझे वो जानना है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन f is differentiable at point A. ये कब बोल सकते हैं हम? एनीबडी? Am I audible clearly? Am I Yes, audible? sir. Okay, okay. Thank you, Rejoice. Okay, so tell me, what is the definition, everybody? What is the definition for the differential function f? When we can say that f is differentiable at point A? f के पास डेरिवेटिव है, ऐसा कब बोलते हैं हम रियल लाइन में? क्या बात है, सैटरडे इफेक्ट नहीं है ना? देखो यहाँ पे क्या होता था, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h इज इक्वल टू क्या बोलते थे हम उसको? एनीबडी? Of A. s ऑफ a. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू बोल दूं, दैट इज माय डिफरेंशिएबल, है ना? जो भी वैल्यू आएगा वो एल हो जाएगा. सो दिस इज फॉर द एफ फ्रॉम आर टू आर.
ये आप देखते हो तो f from r to r है यहाँ पे पूरे डिस्कशन में. Is it okay? Now do you remember? Yes, sir. यही पूछ रहा था मैं. Okay. So here I define new things for our concept. Differentiability for f from r to r. So first definition, let L belongs to r. Means जो भी मेरा जो डेरिवेटिव मिलेगा उसको मैंने L बोला हुआ है कि L belongs to r. Then define lambda L from r to r as lambda Lx is equal to lambda into x. Means here we want to define our new map lambda L which is r from r to r, and if you take any x belongs to r then this function this maps to L into x. ओके सो इसको हम यूज करने वाले हैं. सो कीप इन योर माइंड. मीन्स हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया लैम्बडा एल जो r टू r है और उसकी डेफिनेशन क्या है लैम्बडा एल ऑफ x इज इक्वल टू l इंटू एक्स. मीन्स जो भी सफिक्स में है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. इज इट ओके? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? पता चल गया ना डेफिनेशन? जहां पर भी आपको ये सिंपल दिखाई दे Yes. you use this concept. Okay, L into x आपको यूज करना है. Okay, so for lemma prove the following. Number 1, lambda L is a linear transformation. चलो हम lambda L को मुझे linear transformation prove करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट मुझे प्रूव करना है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो दो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए मैं रिवाइज करवा दूं. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मींस क्या होता है? सो फंक्शन t फ्रॉम rn टू rm. अगर ये rn टू rm है तो, और सिंपल है तो पर भी हम वही करते हैं. अगर t r टू r है तो पर भी यही डेफिनेशन था. सिर्फ मैपिंग को ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है. दैट मींस t x प्लस y इज इक्वल टू t ऑफ x प्लस t ऑफ y. xy belongs to domain and t of alpha into x is equal to alpha t of x. Alpha is any real number and x belongs to domain. Okay, is it okay everybody? Yes, sir. Okay. So अब मुझे lambda L को linear transformation बोलना है तो किसे बोलेंगे? So क्या करेंगे हम सबसे पहले तो let लैम्बडा एल कहां से कहां का था r टू r लैम्बडा Yes, sir. l ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट वी हैव l इनटू x. Flex. ओके तो उसकी डेफिनेशन हमने लिख दिया. अब क्या करेंगे? अब दो पॉइंट लेंगे x एंड y बिलोंग्स टू r क्योंकि डोमेन में से हमको दो पॉइंट लेना पड़ेगा ना. सो एक्स वाई बिलोंग्स टू r. देयरफॉर लैम्बडा l ऑफ x प्लस y What we get here? चलो डेफिनेशन अप्लाई करके बताओ मुझे कि x प्लस वाई के लिए लैम्बडा एल की वैल्यू क्या मिलेगा? L into Lx x plus plus y. Ly. Very good. Lx plus y. Okay, very good. So you can split it because we are dealing with r, है ना? r में तो हम इसको split कर सकते हैं. So Lx plus Ly. Now can I write down Lx is equal to lambda Lx? Yes or no? Yes, Yes. sir. And in place of lambda Ly means lambda Ly. So our first property is satisfied. That means that lambda L of x plus y is equal to lambda Lx plus lambda Ly. Okay, everybody understand? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now our second property for the constant, that means let alpha belongs to real number r and x belongs to also r. So therefore lambda L into alpha x, our second property start with the alpha x. So what is the answer after applying this mapping? L into alpha x. X. L into alpha x. Alpha. We have the property, we can move alpha, so alpha into L into x. Now if you take Lx is equal to lambda Lx, okay, then that is the second property. That means that lambda L of alpha x is equal to alpha lambda L x. So is there any doubt, any question in both the property? No, sir.
So that No, sir. lambda L is linear transformation. Okay, linear transformation. ओके डन, चलो ये कंप्लीट हो गया। सेकंड के बारे में सोचो, चलो सेकंड लेम्मा का सेकंड स्टेटमेंट, लेट lambda r to r be a linear transformation. You have the lambda, okay, then there exists unique L belongs to R, means आप एक ऐसा यूनिक L belongs to R फाइंड कर सकते हो, दैट इज द L is equal to lambda L। कैसे करेंगे इसको, एनी गेस वर्क? कौन सा मिलेगा यूनिक? अगर दोनों सेम है दैट मीन्स वी कैन से दैट बोथ आर द आइडेंटिकल, यस और नो? यस सर। और आइडेंटिकल क्या होता है? प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिटी क्या होता है? 1. हाँ 1, तो ये आइडेंटिटी हुआ ना हमारा, अंडरस्टैंड? प्रोडक्ट के लिए अगर आइडेंटिटी में यूज कर लूँ तो दैट इज माय यूनिक, है ना, उसके अलावा कोई मिलेगा ही नहीं अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि इफ यू ऑब्जर्व हियर लैम्बडा ऑफ x करेंगे सो लैम्बडा ऑफ lx होना चाहिए, और लैम्बडा ऑफ lx की डेफिनेशन अगर आप अप्लाई करते हो तो इट इज l into x। अब कंपलसरी l को क्या बनना पड़ेगा? इसका इनवर्स ही बनना पड़ेगा ना, सॉरी नॉट इनवर्स, आइडेंटिटी बनना पड़ेगा, Identity. आइडेंटिटी सॉरी, आइडेंटिटी बनना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ तो वही है इसका आंसर, है ना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, 2 स्टेप का आंसर है। सेकंड में क्या करेंगे? सो लेट और सेट, हम उसको सेट कर रहे हैं, दैट मीन्स L इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ 1 कर रहा हूँ, ओके, मीन्स हमको तो लैम्बडा के साथ चलना है ना, इसीलिए। सो देयरफॉर फॉर एनी x बिलोंग्स टू R, ओके, मैं कोई भी x लेता हूँ तो लैम्बडा x से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि मुझे क्या दिखाना है? ये दिखाना है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा L, यस और नो एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. हाँ, सो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, लैम्बडा ऑफ x, सो कैन आई राइट लैम्बडा x एज x into 1? Yes, sir. ओके, सो x into 1 हुआ, तो अब इसकी डेफिनेशन मुझे अप्लाई करना है, तो मैं x को बाहर ले रहा हूँ एंड लैम्बडा ऑफ 1 लिखो तो चलेगा कि नहीं? इज इट पॉसिबल और नॉट? Yes, sir. ओके, सो x into लैम्बडा 1 हो गया। अब लैम्बडा 1 को तो मैंने क्या बोला हुआ है? L। L. सो यहाँ पे x into L हुआ, सो उसको मैं L into x लिखूं तो भी चलेगा, एंड दिस इज माय लैम्बडा लोअर सफिक्स L x हो जाएगा, दैट मीन्स दैट लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा L। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ थर्ड थिंग, चलो थर्ड स्टेटमेंट देखो, वो भी बहुत सिंपल है। लेट L बिलोंग्स टू R एंड फंक्शन फ्रॉम Rn टू R, देन लैम्बडा L कंपोजिशन F इज इक्वल टू LF। चलो इसको प्रूव करो दो। ये भी सेम तरीके से ही होगा, ट्राई करो, चलो फिर मैं करवाता हूँ। हुआ कि नहीं? डन। डन, ओके, चलो मेगा को हो गया। व्हाट अबाउट अदर्स? ट्राई करेंगे तो भी होगा, हाँ, नहीं तो फिर नहीं होगा। यू हैव टू ट्राई फॉर दैट। थोड़ा सोचना है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है।
जैसे हमने सेकंड किया ऐसे ही उसको भी करना है। चलो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट यू हैव टू सी अवर स्टेटमेंट एफ फ्रॉम आर एन टू आर लैम्बडा एल कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू एल एफ। तो मुझे ये दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, लैम्बडा एल कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? Yes. और यहाँ पे मुझे लाना पड़ेगा लैम्बडा एफ ऑफ एक्स। तो बहुत इजी है, आप ट्राई करो। चलो मैंने हिंट भी दे दिया। चलो मैं ही करवाता हूँ। उससे पहले हमको x लेना पड़ेगा क्योंकि x कंसीडर करेंगे तभी मिलेगा। सो थर्ड नंबर लेट x बिलोंग्स टू r। तो मैंने x बिलोंग्स टू r लिया है। देयरफॉर लैम्बडा l कंपोजिशन ऑफ f एट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कंपोजिशन हमको पता है क्या देता है, ऑलवेज अंदर वाला फंक्शन अंदर आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. ओके अब यहाँ पे लैम्बडा एल की डेफिनेशन, अगर हम यहाँ पे x होता है तो हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे, हाँ एवरीबॉडी, लैम्बडा एल ऑफ x था तो क्या लिखते थे हम, l इंटू एक्स। X. हाँ, सो अब इसके लिए मुझे लिखना है तो व्हाट आई एम राइटिंग डाउन हियर, LFX. l इंटू एफ एक्स। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके अब यहाँ पे यस, ओके अब l तो स्केलर है तो ब्रैकेट में लिखूं f ऑफ x को या फिर ऐसे लिखूं तो चलेगा कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि हमारा l बिलोंग्स टू r ही है, यू कैन सी l बिलोंग्स टू r ही है। ओके तो वो तो रियल ही है, सो बिकॉज करके भी लिख सकते हो l बिलोंग्स टू r। अब ये स्टार्ट किया था हमने लैम्बडा l कंपोजिशन f ऑफ x से और हमको मिला l f x। सो इसकी जगह पे मैं ऐसे लिखूं तो लैम्बडा l कंपोजिशन f is equal to L into F. Is it okay? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So इतना सिंपल था, उसमें कुछ है ही नहीं। Okay. So up to here, any question, any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Then we go for the next part. Yes. Next definition जो आप पढ़ के आए हो वही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वी आर डीलिंग विद R2R. So let f from R2R be a function and let a belongs to R. Okay, मैं कोई point a belongs to R ले रहा हूँ, then f is differentiable at a, means function f is differentiable at a if there exists a real number L. मीन्स हम इसको बोलते थे एफ डैश से, लेकिन अगर कोई रियल नंबर एल मिलता है दैट इज द आंसर ऑफ दिस वन। यस और नो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. उसको हमने एल बोला है। सच दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h इज इक्वल टू l। सो द रियल नंबर l इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ f एट a। ये तो हम जानते ही थे, एवरीबॉडी जानते हो ना? Yes, sir. ओके अब इसको मुझे Rn में ले जाना है, इसलिए हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि Rn टू Rn जाना है तो मुझे पहले R टू R तो पता होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये R टू R इसीलिए पहले डिस्कस किया गया और उसके बाद उसका थियरम भी है। तो यहाँ पे जो थियरम है वह भी सेम थियरम है बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, बस वही हमको देखना है। ओके सो रियल नंबर L इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ f एट a। सो ये डेफिनेशन में किसी को भी डाउट, एनीबॉडी? No, sir. आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट प्लीज। No doubt. No No, doubt. sir. No, sir. ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन, यस लेमा। सेम लेमा हम उसके आर एन के लिए भी करेंगे लेकिन ये आर टू आर में है। तो आप देखो लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन एंड लेट ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स आई हैव अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड एनी पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर, then f is differentiable at a.
So this is my first part. F is differentiable at A. If and only if there exists a unique linear transformation. There exists unique linear transformation lambda from R to R such that limit h tends to 0 modulus of f of a plus h minus f of a minus lambda of h divided by absolute value of h is equal to 0. सो यहाँ पे आपको इफ एंड ओनली इफ पार्ट दिया है, मींस एफ डिफरेंशिएबल तभी होगा जब हमारे पास एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई दिस लिमिट, ओके, इक्वल टू 0. सो स्टेटमेंट में किसी को डाउट? नो सर. No, sir. अब इसको प्रूव करना है, कैसे करेंगे? कोई गेस वर्क? कोई तो बताओ, जो भी मन में आता है. हमने बोला ही है ना कि हम क्लास में आप कुछ भी गेस वर्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. गलत होगा तो क्या है, कोई थोड़ी हमको बोलने वाला है ना. लेकिन जब First we take f is a differentiable, then we apply the definition of differentiable at point A, वेरी गुड, which is f of a plus h minus f of a divided by h is equals to L. वेरी गुड. Then we define one linear transformation lambda lambda from R to R defined as lambda L is equal to L of x. वेरी गुड. Then we compose it this limit. Okay, limit h tends to 0 mod of f of a plus h minus f of a minus lambda of h. Then we solve this limit and we get 0. वेरी गुड. सो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. वेरी गुड जयवीर, गुड. फर्स्ट पार्ट सबको पता चला. कहां से स्टार्ट करेंगे हम? f इज डिफरेंशिएबल एट a, ओके, दैट इज अवर फर्स्ट वे. हमारे पास टू वे में हमको चेक करना है. तो फर्स्ट वे में क्या करेंगे हम? f इज डिफरेंशिएबल एट a से स्टार्ट करके ये लिमिट को सेटिस्फाई करवाएंगे. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर. Okay, chalo. So first we discuss the first part. Okay, so this is our first part. So I write down here single arrow. Okay, यहाँ पे मैंने arrow लिखा. So assume that f is differentiable at a. अगर ये differentiable है, so can we write down this one? Limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h is equal to h L. ये तो हमने अभी देखा ना कि differentiable है, तो we can write down the limit this way. Okay? Yes sir. Okay. Now as we know we can define our lambda as per this lemma, above lemma है ना. above lemma में हमने जैसे किया था ऐसे define lambda r tends to r as lambda x is equal to lx. ये क्यों आया? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था ना, क्या था वो प्रीवियस लेमा में? यस, ओके. Be a linear transformation, then there exists a unique L belongs to R such that L is equal to lambda L. किया था ना सेकंड स्टेटमेंट? Yes sir. Okay, so we are using that. Then lambda is equal to lambda L is a linear transformation. So यहाँ पे जो lambda is equal to lambda L है वो linear transformation है, वो हमने above lemma में प्रूव कर दिया है. Okay, now next. लिमिट h टेंस टू 0, जो हमारी लिमिट है उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? लिमिट h टेंस टू 0 दिस वन. यहाँ पे सिर्फ मॉड्यूलस मैंने नहीं लिया है फिलहाल. ओके, सो मैंने सिंपल तरीके से स्टार्ट किया. f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a माइनस लैम्बडा h डिवाइड बाय h. नाउ आई हैव द डेफिनेशन ऑफ लैम्बडा h. सो व्हाट आई कैन राइट डाउन हियर? लैम्बडा ऑफ h इज इक्वल टू l इनटू h. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes sir. Okay, now we can split this one, that means a plus b divided by c. So a divided by c plus b divided by c. तो यहाँ पे हमने क्या किया? फर्स्ट दोनों को साथ में रख के डिवाइड बाय h कर दिया, माइनस LH अपॉन h, मीन्स इसको थोड़ा स्प्लिट कर दिया, LH अपॉन h. नाउ h विल बी कैंसल आउट, सो वी कैन टेक द लिमिट, है ना. दोनों टर्म के लिए डिफरेंट कर सकते हैं, लिनियरिटी प्रॉपर्टी इन दी limit concept. So limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h.
माइनस लिमिट h टेंस टू 0 LH अपॉन h, तो यहाँ पे HH कैंसिल हो चुका है, तो लिमिट ऑफ L क्या होगा, L ही होगा। और यहाँ पे हमने कंसीडर किया था कि डिफरेंशिएबल है, तो ये इसकी आंसर हमारे पास L ही था। सो L माइनस L इज इक्वल टू 0। नाउ इफ आई टेक द मॉड्यूलस एट एवरीवेयर, देन इज देयर एनी चेंज? No, sir. No, sir. Okay, so there is no any reflection, other reflection. So limit h tends to 0, modulus of f of a plus h minus f of a minus lambda h divided by modulus of h is equal to 0. So our first part is proved. So any doubt, any question in first part, everybody? No, sir. What about others? No doubts. Okay. No, sir. No doubt. Okay, then we go for the second part. चलो second part के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सोचो। Sir, first we take limit h tends to 0, f of a plus h minus f of a minus lambda h divided by h is equals to 0. Then we have one unique linear transformation lambda for r to r such that lambda L of x is equal to Lx. Then we can write this, it is a linear transformation, therefore lambda is equal to lambda L. Very good. Then we put lambda h instead of lambda h we take LH. Then we split the then we write limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h minus L of h divided by h. Then limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h is equal to, वो L को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए। यस, तो सेम पार्ट है, यही का यही पार्ट, सिर्फ यहाँ पे आपको L की, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h की जगह पे L रिप्लेस नहीं करना है। यस और नो? Yes. यही का यही करना है, इक्वल टू 0 के साथ चलना है और यहाँ पे इसकी जगह पे आपको L सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। दैट्स ऑल। डन एवरीबॉडी? सेकंड पार्ट में थोड़ा बहुत पता चला? Yes, sir. ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, अब मुझे सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करना है? सेकंड पार्ट में क्या होगा? सो वी हैव टू स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट, means there exists a unique linear transformation lambda r tends to r such that this one. So हम इससे स्टार्ट करेंगे एंड f is differentiable दिखाएंगे। अब f is differentiable दिखाना है, उसका मीनिंग क्या हुआ? So we have to prove that limit h tends to 0 f of a plus h माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू एल मुझे लेके आना है, तब जाके मैं उसको डिफरेंशिएबल बोल पाऊंगा कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो मुझे बस यही से स्टार्ट करके ये लेके आना है। देन वी थिंक अबाउट द यूनिकनेस, उसके बाद हम यूनिकनेस के लिए सेकंड पार्ट पे जाएंगे। तो पहले इतना तो कर दे। ओके, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी फ्लो ऑफ द प्रूफ? Yes, sir. ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो कन्वर्सली यू कैन सी दैट, कन्वर्सली एज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे हमने यूनिक नहीं लिखा है क्योंकि वी हैव टू चेक इट यूनिक है कि नहीं। देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लैम्बडा r टेंड्स टू r such that limit h tends to 0 modulus of f of a plus h minus f of a minus lambda of h divided by modulus of h is equal to 0। मैंने सेकंड पार्ट यहाँ कंसीडर किया कन्वर्सली के लिए। ओके, नाउ इफ आई रिमूव द मॉड्यूलस देन वी विल get same the result, limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a minus lambda of h upon h is equal to 0। okay, everybody done? Yes, sir. Okay, now again we can define the linear transformation lambda from r to r is a linear transformation that there exists a unique L belongs to r such that lambda of x is equal to L into x। तो यहाँ पे जो lambda of h है उसकी जगह पे मेरा हो जाएगा L into h हो जाएगा। okay? Yes, sir.
ओके, नाउ इम्प्लाइज, अब इसको थोड़ा स्प्लिट करो, तो स्प्लिट करेंगे तो एल एच अपॉन एच हो जाएगा इक्वल टू 0. अब एच एच विल बी कैंसल आउट, सो वी हैव द एल इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे मैंने बोला था कि इसकी जगह पे आपको सिर्फ एल नहीं रख सकते क्योंकि हमको नहीं दिया गया है. ओके, डिफरेंशिएबिलिटी हमको चेक करना है. सो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 l. बट हम जानते हैं कि l की लिमिट खुद ही हो जाएगी, कांस्टेंट की लिमिट खुद ही हो जाता है ना, सो l ही रहेगा. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h इज इक्वल टू l. सो वी कैन से दैट f इज डिफरेंशिएबल एट a. ओके, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, नाउ वी वांट टू चेक द यूनिक, है ना, कि जो हमको मिला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो यूनिक ही होगा. तो यूनिक दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? चलो, एनी गेस वर्क अगेन? बोलो. Lambda h is equals to lambda l h s h. लैम्ब्डा क्या? Lambda h एच. is equals to lambda l h. लैम्ब्डा एल एच, इसे दिखाएंगे Suffix में l. सफिक्स में. ओके, चलो सफिक्स में एल. इज इट ट्रू एवरीबॉडी? नो, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया है. देखो, हमने यूज कर लिया है, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी में यूज कर लिया ना ये. ओके, Yes, sir. है ना सचिन? Yes, ओके, sir. अब हमको जब भी यूनिकनेस प्रूव करना है ना, तो कीप इन योर माइंड एक ही चीज करना है कि उसका डुप्लीकेट ले लो और दोनों को सेम दिखा दो. दैट इज द यूनिकनेस. यस और नो? Yes, sir. यूनिकनेस के लिए ऑलवेज हम क्या करते हैं कि उसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, कि उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सचिन और मैं, है ना, हम दोनों हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का यूनिकनेस दिखाने के लिए क्या करना है आपको? सचिन इज इक्वल टू जीमित. यस और नो? Yes, sir. है ना, तो वही हमको फॉलो करना है. तो इसके लिए मैं लैम्ब्डा की जगह पे दूसरा कोई ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा जो मुझे सेम ही वैल्यू देगा. ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, सो वही से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट लैम्ब्डा एंड म्यू, देखो हमने दो लिए, है ना, डुप्लीकेट लिया हमने म्यू. लैम्ब्डा म्यू r टेंड्स टू r बी ए लीनियर मैप्स सच दैट. अब और दोनों जो मैप है वो ये दोनों को सेटिस्फाई करता है, मींस इक्वल टू 0, दोनों इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि लैम्ब्डा होगा तो भी 0 एंड म्यू होगा तो भी 0. इज इट ओके? यहाँ तक सबको पता चल गया? Yes, sir. ओके, अब हमने आगे भी इसको यूज किया है कि आइडेंटिटी को यूज किया था, है ना. सो लैम्ब्डा इंटू 1 माइनस म्यू इंटू 1 करता हूं तो क्या होगा? देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्ब्डा ऑफ 1 माइनस म्यू ऑफ 1 मैं लिख सकता हूं कि नहीं है? Yes. अब दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय h एंड डिवाइड बाय h कर रहा हूँ. दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 h लैम्ब्डा ऑफ 1 माइनस h म्यू ऑफ 1 डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ h. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है? h को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है. इज इट ओके? एडजस्टमेंट. Yes, sir. ओके, अगर इसके ऊपर ऑब्जर्व करूँ, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लैम्ब्डा ऑफ h, Yes, sir. है ना, क्योंकि हमारे पास था ना, क्या था? लैम्ब्डा ऑफ x इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे? लैम्ब्डा lx. तो उसी को हम लिखते थे lx. ओके, तो यहाँ पे लैम्ब्डा ऑफ x है, उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्ब्डा ऑफ h लिख सकता हूँ, क्योंकि h मेरा बाहर. ओके, एवरीबॉडी डन? Yes, sir. ओके, सो h इंटू म्यू ऑफ 1 की जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ? म्यू ऑफ h लिख सकता हूँ. सो डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ h. तो यहाँ तक कोई डाउट? एनीबॉडी? No, sir.
ओके अब यहाँ पे देखो मैं अरेंजमेंट ऐसा कर रहा हूँ कि एफ ऑफ ए प्लस एच ऐड कर रहा हूँ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ ओके एंड सेम वे एफ ऑफ ए क्योंकि वी कैन डू इट और अगर हमने ये थोड़ा किया तो दैट इज द स्ट्रिक्टली लेस और इक्वल टू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है यहाँ पे दो टर्म हो गए यस और नो इज इट ट्रू देखो यहाँ पे चलो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है आई नो इट ओके चलो यहाँ पे देखते हैं जगह कहाँ पे है यस यही पे करते हैं चलो अब मेरे पास क्या था इफ यू रिमेम्बर देन आई हैव यहाँ पे देखो चलो लिमिट ऐसा था लिमिट h टेंड्स टू 0 आई हैव लैम्बडा ऑफ h माइनस म्यू ऑफ h डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ h अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखना लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे मेरा हो रहा है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और यहाँ पे प्लस लैम्बडा ऑफ h कर रहा हूँ ओके एंड सेकंड में माइनस f ऑफ a प्लस h यहाँ पे प्लस f ऑफ a एंड यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस म्यू ऑफ h तो ये दोनों का मैं प्लेस चेंज कर रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ h ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं कैन आई राइट डाउन इन दिस वे यस सर ओके अब क्या कर रहा हूँ मैं लिमिट स्मॉल एडजस्टमेंट यहाँ पे f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a है तो हमको यहाँ पे माइनस वाला चाहिए तो म्यू ऑफ h को पहले लिख देता हूँ ओके देन सेकंड वन माइनस कॉमन लेके f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a और लैम्बडा वाला जो प्लस था वो ऑलरेडी माइनस बाहर लिया है तो लैम्बडा h कैन आई राइट डाउन इन दिस वे यस सर है ना डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ h अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि मॉड्यूलस अगर आपको निकालना है दैट मींस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस y क्या होता है लेस और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y यस और नो यस सर Yes. है ना तो हियर आई एम यूजिंग दैट मींस लेस और इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 अब ये फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ दैट मींस मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a minus mu of h divide by modulus of h and here plus limit h tends to 0 and second one f of a plus h minus f of a minus lambda of h divide by modulus of h yes or no everybody ये लिख सकते हैं कि नहीं is it okay कहाँ गड़बड़ हुआ बोलो तो सही पहले वो माइनस का प्लस कैसे हो गया फिर से एक बार एक्सप्लेन करोगे वो तो मॉड्यूलस है ना इसीलिए अगर मैं इसको चलो यहाँ पे प्लस करता और यहाँ पे पूरा माइनस करता तो क्या होता क्योंकि ओके ओके सर बेसिकली तो ये माइनस मॉड्यूलस ही होने वाला है ना यस सर गॉट इट अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं कि फॉर एग्जांपल x है और मेरा x माइनस वाई है तो यहाँ पे मैं x प्लस माइनस वाई के थ्रू में जाऊँ तो दिस इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन मॉड्यूलस ऑफ y होगा कि नहीं यस सर कर सकते हैं कि नहीं यस सर जयवी इज इट ओके Yes, sir. ओके डन एवरीबॉडी आप रिप्लाई करो यार नहीं तो नहीं Yes. ओके Done, sir. डन चल तो यहाँ पे मैंने वही कॉन्सेप्ट लिया है ना तो यहाँ पे पूरा ये मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखा था उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया इज इट ओके एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई यस सर है ना यस सर तो अब सीधा मैं ये स्टेप पे चला जाता हूँ तो यू कैन से यस ओके तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बट हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि ये दोनों जीरो है वही से स्टार्ट किया था कि नहीं Yes. सो इसकी जगह पे ये पूरा मेरा जीरो हो जाएगा अब इसकी जगह पे भी मेरा पूरा जीरो हो जाएगा सो जीरो प्लस जीरो जीरो सो मॉड्यूलस ऑफ लैम्बडा ऑफ 1 माइनस म्यू ऑफ 1 लेस और इक्वल टू जीरो मिल गया मुझे तो लैम्बडा ऑफ 1 इज इक्वल टू म्यू ऑफ 1 भी हो सकता है कि नहीं
Yes, sir. ओके सो यहाँ पे मैंने लिखा है देखो thus lambda of 1 is equal to mu of 1. अब lambda of 1 is equal to mu of 1 का मैं यूज करूंगा, देखना एवरीबॉडी. सो lambda of x, क्योंकि मुझे बेसिकली दिखाना क्या है, lambda is equal to mu दिखाना है कि नहीं, दोनों सेम है से, Yes, sir. है ना. सो lambda of x is equal to, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x into lambda of 1. ये तो हमने लिखा था, कैसे किया था हमने, lambda of x into 1 करके. यस और नो? Yes, sir. अब मेरा x एज इट इज रख रहा हूं, lambda of 1 इज इक्वल टू मैंने mu of 1 प्रूव कर दिया है, सो mu of 1 आई कैन राइट डाउन हियर. अब x into mu of 1 पे उल्टा सोचूं तो mu of x हो जाएगा. Yes, sir. So lambda is equal to mu for all x belongs to R. Therefore, our uniqueness is proved. So please read one time. एक बार देख लो, uniqueness में कोई भी स्टेप में डाउट है तो you can ask me. चलो चेक करो. Then, sir. वेरी गुड. चलो सब लोग देख लो एक बार, कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछो. No, sir, no doubt. Okay. What about others? Yes. पार्थ ने भी डन कर दिया. No doubt, sir. No doubt, sir. ने भी डन कर दिया. यस. ध्रुव ने कर दिया, अनिरुद्ध ने कर दिया, धवल. ओके. अब जो नए हैं हमारे दो, उनको कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No doubt, sir. ओके ओके, थैंक यू. ओके चल, तो फिर ये पूरे थियरम में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? No, sir. Sir, I have a question. यस बोलो बोलो जयवी. यस. सर हमको ये दिया है कि f डिफरेंशिएबल है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. वो तो सर हम यूनिकनेस वाला पार्ट फर्स्ट में नहीं प्रूफ कर सकते? नहीं, फर्स्ट में कैसे कर सकते हैं जयवी? यूनिक फर्स्ट में हमने क्या लिया था कि f डिफरेंशिएबल है और हमें ऐसा फाइंड करना है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन. यस. तो उसमें ही यूनिकनेस वाला पार्ट आएगा ना, क्योंकि सेकंड में तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं ना कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन देन f इज डिफरेंशिएबल. यस वेरी गुड, आपकी बात सही है. लेकिन आप चेक करो, चलो पहले की चेक करो. पहले का क्या है, हमने डिफरेंशिएबल लिया, उसमें Yes, हमको sir. ये मिल गया. ओके ये Yes. इक्वल टू 0 हुआ. ओके अभी इक्वल टू 0 हुआ तो इसी को मैं नीचे कनेक्ट करूं तो भी चलेगा. आप देखो हाँ, यहाँ. yes sir. तो सेम ही चीज हुआ. जयवी वही हुआ ना. देखो आप फर्स्ट के बाद ये इसको कनेक्ट करो या सेकंड के बाद इसको कनेक्ट करो, कोई चेंज नहीं हो रहा है. देखो आप, हम Yes. इस सेकंड का यूज इसमें नहीं कर रहे हैं. यू कैन सी. हाँ. हाँ हम बेसिकली यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये दोनों, हमने ऐसे एज्यूम किए कि दोनों का आंसर 0 है. देन वी गो फॉर द यूनिकनेस. ओके Yes sir. डन. नाउ Done. इज इट क्लियर? Yes sir, clear. हमने जो यूनिकनेस प्रूव किया उसमें इसी का तो हम कुछ यूज नहीं कर रहे. इसका जो सेकंड पार्ट है उसका हमने कोई जगह पे हमने यूज नहीं किया, सिर्फ मैंने स्लाइड ऊपर नीचे किया है, नथिंग एल्स. आपका क्वेश्चन वैलिड है, यू आर राइट. ओके कि यहाँ पे हमको f डिफरेंशिएबल है, देन वी हैव द यूनिक, तो यूनिकनेस फर्स्ट में ही आ जाना चाहिए. तो मैंने सिर्फ यूनिकनेस सेकंड में पीछे रखा हुआ है, बस दूसरा कुछ नहीं. हम कॉन्सेप्ट पहले वाला ही यूज कर रहे हैं. इज इट ओके एवरीबॉडी? जयवी का क्वेश्चन सबको पता चला Yes. Yes, sir. sir. है ना? Yes, sir. ओके ओके. तो यहाँ पे आगे लिखो या पीछे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ ये लामड़ा और दूसरा कोई भी लो, आप या म्यू की जगह पे म्यू1 लेते हो या लामड़ा 1 लेते हो तो पर भी कोई इश्यू नहीं है. सिर्फ यू हैव टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स, नथिंग एल्स. ओके
Okay, everybody. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, any other question? No, sir. Okay. Sir. अब हम क्या करते थे, देखो हम बेसिकली इसको एफ डैश एक्स बोलते थे कि नहीं, एफ डैश ए, सॉरी एफ डैश ए बोलते थे कि नहीं हमारे ओरिजिनल, जब हम 11 12 में या फिर बीएससी में इसको क्या बोलते थे, एफ डैश ए बोलते थे. इज इट ओके? Yes, sir. सो अब यहाँ पर भी कुछ सिंबल देना पड़ेगा. सो नेक्स्ट पार्ट इज दैट वी आर गोइंग टू सिंबल. ओके, सो यहाँ पे देखो, नाउ वी कैन रीराइट डेफिनेशन 2.1.2. तो यहाँ पे 2.1.2 नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में लिया है इसलिए. यस, यही डेफिनेशन को, ओके, तो ये डेफिनेशन को अब रीराइट करते हैं, यही का यही डेफिनेशन, सॉरी ये नहीं, ये वाला, यस दिस वन, इसको हम रीराइट करते हैं और हमारे टर्म्स में ले जाते हैं. आर एन में हमको जैसे लेना है ना, ऐसे. So देखो, let f from R to R be a function and let a belongs to R, then f is said to be differentiable at a if there exists a linear transformation. means हमको एक linear transformation मिलेगा lambda r tends to R such that limit h tends to 0 modulus of f of a plus h minus f of a minus lambda of h divided by modulus of h is equal to 0. ओके, तो ये तो हमने डेफिनेशन किया कि नहीं, यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया. ओके, Yes, sir. ओके, सो हियर देखो, इन दिस केस लैम्बडा इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ f एट a एंड इट इज डिनोटेड बाय dfa. सो हम इसको क्या सिंबल देंगे, dfa मींस डेरिवेटिव ऑफ f एट a, क्योंकि हम हर बार आर एन में ऐसे नहीं लिख सकते ना, डैश डबल डैश ट्रिपल डैश, है ना, इसलिए उन्होंने डेरिवेटिव के लिए डी यूज किया अभी फिलहाल. ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव है इसलिए. सो डी फॉर डेरिवेटिव, सो डी ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू दिस वन पूरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ h. ओके, डन एवरीबॉडी? Is Yes, it sir. okay? Okay. Yes, sir. This is the definition what we are going to define. Okay, तो यहाँ पे हमने इस हिसाब से उसको define कर दिया. So, is there any doubt, any question in today's session? Anybody? No, sir. Okay. Now we extend this concept for the Rn to Rm. Okay, Rn to Rm. इसी concept को हम आगे बढ़ाएंगे nth dimension से mth dimension. Okay, that means Rn to Rm. So any question, any doubt in this lecture? Anybody? Yes. Yes, sir. हाँ, yes, सचिन बोलो. Sir, हमने जो last rewrite किया ना definition, हाँ, वहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ a इज इक्वल्स टू l नहीं होगा? L नहीं, लामड़ा होगा ना, हमने लामड़ा के टर्म्स में लिया ना, लामड़ा ऑफ h, ओके, यस है ना, क्योंकि यहाँ पे लामड़ा ऑफ h बेसिकली L में जाएगा, है ना, L इंटू h होगा. यस सर, अब इसलिए मैं बोला कि h होगा ना. हाँ, लामड़ा ऑफ h होगा L इंटू h, और L इंटू h से ही हमारा h कैंसिल होके L आएगा, लेकिन उसको हमने नया नोटेशन दिया d ऑफ f ऑफ a. यस सर. ओके, क्योंकि वी आर इंट्रोड्यूसिंग द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हियर, इसलिए उसका यूज किया हमने, क्योंकि वो L जो था वो तो हमारा वैल्यू था. ओके, ओके सर. ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? नो No, सर. sir. Okay, so we No. stop here. Okay, and Sir, yes, yes, Devi, yes. sir, can you share the PDF of